بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو فریحہ ادریس آفیشیل۔ بڑے دنوں سے اس سے بحث جاری ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے جو انٹرویو دیا اس کے کچھ اور معاملات کو اٹھا کر بھی ڈیبیٹ ہوئی، لیکن جو کہتے ہیں بیک بون آف دا انٹرویو، بیک بون آف دا پاکستانی پالیسی اینڈ بیک بون آف ایوری تھنگ بینگ سیڈ ان دا ریسنٹ پاسٹ، وہ کلپ ہے جو پرائم منسٹر نے امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے کہا اور بیسس کے اڈے دینے سے جو صاف انکار کیا، وہ صرف بیسس کا معاملہ نہیں ہے، وہ اصل میں آپ کی آئندہ آنے والے دنوں میں پالیسی کا معاملہ ہے۔ اور یہ تمام کے تمام جو معاملات ہیں یہ جڑے ہوئے ہیں 11 ستمبر کے ساتھ، جس وقت عالمی دنیا میں ایک نئی تبدیلی رونما ہوئی، جس کا اثر اب آپ سمجھیں کہ اس کی آخری لیگ میں آپ ہیں، لیکن ابھی تک وہ ایوالو ہو رہی ہے سچویشن، کیونکہ اسی کے ساتھ افغانستان کی جنگ کا تعلق ہے، اسی کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا تعلق ہے، اسی کے ساتھ پاکستان کی اس الائنس کا تعلق ہے جو امریکہ کے ساتھ بنا اور جس میں ہم نے اپ اینڈ ڈاؤن دیکھے، اور آج آ کر ہم ایک نئی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ ریجنل بلاکس بنے ہیں اور پاکستان نے شفٹ لی ہے، اور اس شفٹ کا ڈائریکٹ اثر ہم نے دیکھا پرائم منسٹر کے انٹرویو میں، اور کھل کر کہہ دیا جو کہ اب گورنمنٹ سوچ رہی ہے۔ لیٹس واچ دس ونس اگین۔ Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. So یہ اس لیے میں نے آپ کو دکھایا کہ یہ دیکھنا اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اینڈ یس پرائم منسٹر نے ایک بڑا زبردست جواب دیا، اور کیونکہ یہ ان کی اپنی ایک کنسسٹنٹ پالیسی ہے، تو اسٹیٹ کی پالیسی وہی ہے جو پرائم منسٹر کی اپنی ماضی میں رہی۔ اس حوالے سے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انہوں نے ایک بڑا کیلکولیٹڈ بٹ بڑا پاپولر سٹانس لیا ہے، اور پاکستان میں اس کو شدید پذیرائی بھی ملی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں کہ ہو کیا رہا ہے۔ پاپولر سٹانس تو ایک طرف، لیکن کچھ آپ کو باقاعدہ برننگ ایشوز نظر آ رہے ہیں اور پاکستان کو ان سے نمٹنا ہی پڑے گا۔ 11 ستمبر دنیا بھر میں اس لیے مشہور ہے کہ 20 سال قبل اسی تاریخ کو امریکہ کے ٹوئن ٹاورز پر حملے ہوئے تھے، اور یقیناً ان حملوں کی فوٹیج سب نے ہی دیکھی ہوئی ہے۔ آئیکونک وہ ایک منظر تھا جس کے بعد دنیا میں دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ شروع ہو گئی تھی۔ امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا، پاکستان کو زبردستی اس جنگ میں دھکیلا گیا۔ اب جو پرائم منسٹر نے ابھی بات کی ہے اس کو ڈائریکٹلی ریلیٹ کیا جا رہا ہے اس وقت جو بات کی تھی، پرویز مشرف صاحب کا دور تھا وہ، اور مشرف صاحب نے ان پہ الزام یہ لگتا رہا کہ فوراً ہی ہر بات مان گئے۔ انفیکٹ امریکن تھنک ٹینکس نے بھی یہ بات کہی ہے، مگر یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ 20 سال پہلے افغانستان ایک الگ افغانستان تھا، 20 سال پہلے امریکہ ایک الگ امریکہ تھا، اور 20 سال پہلے پاکستان ایک مختلف پاکستان تھا۔ سو آج جب ہم ایمرجنگ بلاکس کی بات کرتے ہیں اس میں یہ تبدیلی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج جو چھوڑ کے جا رہا ہے امریکہ افغانستان کو، تو اس میں یہ تبدیلی بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسی انٹرویو میں آپ کو میں یہ بھی بات کہنا چاہتی ہوں کہ بہت ضروری ہے، جب پرائم منسٹر سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ کی بات ہوئی ہے جو بائیڈن سے، تو انہوں نے کیا کہا، لیٹس واچ دیٹ۔ Have you spoken to Joe Biden since he took office? No, I haven't. Is there a reason for that? Whenever he has time, he can speak to me. But at the moment, clearly, he has other priorities. سو اس بڑے کیئرفلی کیلکولیٹڈ جواب میں پرائم منسٹر نے یہ بات بتا دی کہ جو بائیڈن کے ساتھ ان کا رابطہ نہیں ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں جس وقت پرائم منسٹر عمران خان نے اقتدار سنبھالا تھا پاکستان میں، فوراً ہی ٹویٹ آئی تھی واشنگٹن کی طرف سے، جہاں پر وہی پرانا منترا کہ پاکستان ٹیررزم کی طرف جاتا ہے، ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے، جو کہ بار بار بمبارڈ کیا گیا تھا جھوٹ کی طریقے سے، انڈین لابی اس میں شامل تھی۔ اس کے بعد اس کے جواب میں پھر پرائم منسٹر نے اس وقت کے امریکی صدر کو جواب دیا تھا، پھر معاملہ اور بڑا سخت جواب دیا تھا،
फिर मामला ठीक हुए और हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर वाशिंगटन गए थे, उनकी मुलाकात हुई थी और यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप उनको अपना पर्सनल फ्रेंड कहते रहे। उन्होंने कहा कश्मीर पे भी मैं मीडिएट करवाऊंगा। अब आ गई जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन। जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन का माजी में जो तजुर्बा रहा है, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी की एडमिनिस्ट्रेशन का माजी में तजुर्बा रहा है, लगा के बिल्कुल वहीं से वो दोबारा शुरू करेंगे जहां पर पाकिस्तान को ऑलमोस्ट उन्होंने कोल्ड शोल्डर दिखाने की कोशिश की। सो प्राइम मिनिस्टर ने एक साफ जवाब दिया कि वो हमसे बात कर सकते हैं। असर इसका मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ। लिंजी ग्राम ने एक नहीं, दो नहीं, 3 ट्वीट्स कर डाली। अब ये बड़ा अहम है क्योंकि अमेरिकन थिंक टैंक जो कि ये अमेरिकन सर्कल्स जो ये दिखा रहे थे कि पाकिस्तान इज़ ओनली अ प्रॉब्लम, जिस पर पाकिस्तान को इतराज़ है, वहाँ पर इस बात का एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान के साथ ये रवैया तब्दील करना पड़ेगा। आई शो यू लिंजी ग्राम की जो पहली ट्वीट थी। उन्होंने कहा कि आई बिलीव दिस डिसीजन बाय द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, बल्कि उन्हें पहली जो ट्वीट की मैं उल्टा पढ़ी हूँ, लेट्स गो टू द फर्स्ट वन। उन्होंने कहा स्टनिंग टू हियर that President Biden has not reached out to the Prime Minister of Pakistan, Imran Khan, regarding the US-Pak relationship and Afghanistan. So Lindsey Graham is saying कि उनको ये देखकर इंटरव्यू पता चला कि बातचीत नहीं है, and he's saying he's stunned, वो हैरान परेशान हैं, वो शर्जदर हैं कि आप लोगों ने पाकिस्तान से बात नहीं की। फिर वो कहते हैं, and let's not forget कि ये रिपब्लिकन पार्टी से इनका ताल्लुक है। How do we expect our withdrawal from Afghanistan to be effective without coordinating with Pakistan? पाकिस्तान से बात किए बगैर तो कभी भी आप कामयाब तरीके से निकल ही नहीं सकते अफगानिस्तान से। Who's saying that? Lindsey Graham is saying that. Clearly, the Biden administration believes that our problem in Afghanistan are behind us. उन्होंने तनबीह की है अमेरिकी सदर को, अमेरिकन रिपब्लिकन सेनेटर ने, कि आप ये जो समझ रहे हैं कि हमारी तमाम प्रॉब्लम्स वहाँ से निकल के ख़त्म हो जाएंगी, ये आपकी बड़ी गलत फहमी है। और ये भी अगर आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान से बात किए बगैर ये हो जाएगा, ये भी आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। Again, another tweet by Lindsey Graham. He says, I believe that the decision by the Biden administration to withdraw all forces and not stay engaged with Pakistan is a major disaster. ये वर्ड उन्होंने यूज़ किए हैं, in the making, even worse than the blunder in Iraq. आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अमेरिका में इन वॉर्स को ब्लडर ही समझा जा रहा है। ये भी समझिए कि जब बराक ओबामा, अगेन अ डेमोक्रेटिक पार्टी प्रेसिडेंट, वो जब इलेक्ट हुए थे, उन्होंने उस वक्त की अपनी प्रेसिडेंशियल स्पीच में कहा था, नॉट प्रेसिडेंशियल, जो उनकी एक पहले स्पीच होती है कैंडिडेट्स की, कि अफगानिस्तान इज़ अ फॉरगॉटन वॉर, कि एक वक्त आया था कि अफगानिस्तान को भूल के इराक में चला गया था अमेरिका। फिर उन्होंने याद दहानी कराई, नो द रियल वॉर इज़ अफगानिस्तान। इराक को छोड़ के वो फिर अफगानिस्तान में आ गए थे। मगर अब दोबारा तनबीह कर रहे हैं लिंजी ग्राम कि अब जो ये डेमोक्रेटिक पार्टी ये समझ रही है कि बस हम निकलेंगे और सब ख़त्म, ये बहुत गलत मामलात हैं। सो लेट्स गो बैक इन द पास्ट। ये भी एक तल्ख हकीकत है कि जो ये जंग रही है, आप लोग हम देखें उसको कि क्या खोया क्या पाया, ये कामयाब नहीं हो सकी। पूरी का पूरा जो प्रोसेस है उसको अगर हम बड़े तरीके से सोच रहे हैं, अमेरिकन थिंक टैंक्स किसी तरीके से बताएं ये कामयाब जंग है, अभी हमने देख लिया लिंजी ग्राम कह रहे हैं कि डिज़ास्टर है, इसको कामयाब साबित करना एक बड़ा मसला हो रहा है। क्योंकि इसके बाद दुनिया में होना क्या था, देखें आप ऑब्जेक्टिव्स देखें, इस जंग के बाद आपने दहशतगर्दी के वाक़यात ख़त्म करने थे, वो तो बहुत बड़ी तादाद में बढ़ते चले गए। इस्लामोफोबिया का एक नया ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ और न्यूजीलैंड से कनाडा तक फैलता चला गया, बजाय इसके कि वो रोका जाता मामलात को, नफ़रत को, किसी भी दीन के ख़िलाफ़ नफ़रत, वो बढ़ना शुरू हो गई। अब जब आप एक मज़हब को कर्टेल करेंगे, उसके लोगों को चुन चुन के मारेंगे, तो उसका एक लैशबैक आना है। जब आप उनको ज़बरदस्ती दीवार से लगाएंगे, उसका एक लैशबैक आना है। और ये बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बार बार बताते चले गए हैं। अब अमेरिका अफगानिस्तान में अमन कायम करने की जो कोशिश थी, उसमें वो कामयाब नहीं हुए और जिस तक वो जा रहे हैं तो ये नाकाम होती हुई नज़र आ रही है और वापसी की तैयारियां जारी हैं। और जो डेट है वो 11 सितंबर की तारीख रख दी गई है। मगर अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान में हालात अब नज़र आ रहा है कि ख़राब ज़्यादा हो जाएंगे। अब आप पिछले एक माह को देख लें, 50 से ज़ायद अजला पर तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है। अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले भी बढ़ते ही चले जा रहे हैं। आए दिन आप ये बात सुन रहे हैं। हमारे लिए ये तशवीशनाक सूरत हाल है, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने अगेन अपने इंटरव्यू में कहा, वो भी क्लिप सुन लीजिए। In case Taliban go for an all-out victory, there is going to be incredible amount of bloodshed. And let me tell you, the country that is going to suffer the most after Afghanistan is going to be Pakistan.
We already have 3 million Afghan refugees here. And this could lead another exodus. So that is our biggest concern. The Americans, before they leave, there must be a settlement. जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान के हालात से वाबस्ता है, अब अक़वाम मुत्तहिदा ने भी खबरदार किया है कि अफगानिस्तान में जंग बढ़ने की सूरत में पड़ोस के ममालिक मुतासर होंगे। एटलीस्ट यूनाइटेड नेशंस ये बात मान रहा है। इस बारे में आपको DW की एक रिपोर्ट दिखानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। एंड लेट्स हैव अ लुक। ये कह रहे हैं अफगानिस्तान United Nations issues warning as Taliban launches major offensive. The Taliban continues to take over districts across Afghanistan as the US and its NATO allies continue a military pullout. The UN has warned that provincial capital cities could soon fall into the hands of militants. अब militants वो कह रहे हैं क्योंकि उनको जवाब भी चाहिए एंड यकीनन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो militants ही हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में सियासत, सलामती और अमन के अमल में होने वाली पेशरफ्त के उलट जाने का ख़तरा पैदा हो गया है। यानी जो कोशिश हमने की थी वो उल्टी होती हुई नज़र आ रही है। मुल्क के शुमाली इलाकों में तालिबान बड़े इलाकों पर कब्ज़ा करते चले जा रहे हैं और अब वो अपने कब्ज़े वाले जनूबी इलाकों से निकल कर मज़ीद ख़ित्तों की जानिब पेशकदमी कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट दे आर वार्निंग। अमरीकी हुकाम, अगेन DW को मैं कोट करी हूँ, वो ये कह रहे हैं कि वो पहले ही कह चुके हैं कि वो अफ़गानिस्तान में खुफिया मालूमात जमा करने का ऑपरेशन जारी रखेंगे। यानी जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं इंटेलिजेंस की वो जारी रहेंगी और ज़रूरत पड़ने पर ख़ित्ते के किसी पड़ोसी मुल्क से फ़ौजी कार्रवाई भी करते रहेंगे। यानी इशारा पाकिस्तान की तरफ है। लेकिन किसी पड़ोसी मुल्क में अमेरिका के लिए नई फ़ौजी अड्डे तलाश करना आसान काम नहीं है। ये बात भी उनको समझ आ गई है क्योंकि इससे रूस और चीन के साथ एक नई कशीदगी पैदा होने का ख़तरा लाहक हो जाएगा जो मरकज़ी एशिया में इस वक्त अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्कों ने पहले ही ऐसी अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी हैं। सो अब जो बार बार ये इतराज़ था कि अमेरिकन क्या कह रहे हैं, अमेरिका ने भी बता दिया है कि जी पाकिस्तान की तरफ से आप बिल्कुल ना समझें। अमेरिका को ख़ित्ते में फ़ौजी अड्डों की तलाश है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमेरिकी TV को जो इंटरव्यू दिया उसमें यही बात की जो मैंने आपको शुरू में दिखा दिया। वॉशिंगटन पोस्ट में भी खान साहब ने फिर एक आर्टिकल लिखा, पहले कह दिया। अब उस आर्टिकल के ऊपर भी मैं आपको उसका दिखाती हूँ कि उन्होंने क्या कहा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में जंगों के दौरान पाकिस्तान ने बहुत नुकसान उठाया। 70,000 से ज़ायद पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। अमेरिका ने पाकिस्तान को $20 अरब इमदाद फराहम की जबकि पाकिस्तान की मईशत को $150 अरब का नुकसान पहुँचा। अमेरिका के साथ जंग में शामिल होने के बाद पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। अमेरिकी कोशिशों में शामिल होने के बाद पाकिस्तान को एक साथी की हैसियत से निशाना बनाया गया। अमरीकी ड्रोन हमलों से जंग नहीं तो जीत पाए लेकिन नफरत पैदा कर दी। अमेरिका ने अफगान सरहद पर कबायली इलाकों में फ़ौज भेजने के लिए दबाव डाला। शुमाली वज़ीरिस्तान में 10 लाख अफराद बेघर हुए जिससे अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा। हमने पहले ही बहुत भारी कीमत अदा कर दी, अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बड़ी एक तरीके से अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो बड़े इमोशनल फीलिंग होनी चाहिए तमाम पाकिस्तानियों को क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर जो हैं इनकी बहुत सारी बातों पे आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, हम लोग भी बहुत सी चीज़ें क्रिटिसाइज़ करते हैं, बट ये जो स्टांस प्राइम मिनिस्टर ने लिया है ये इनका स्टांस आज से नहीं कई सालों से कंसिस्टेंट स्टांस है। आई नो बहुत सारी बातों में कहा जाता है कि यू टर्न आ जाता है, खुद कह चुकी है PTI कि यू टर्न लेना सियासी हिकमत अमली होती है। इस पे कोई यू टर्न नहीं लिया इमरान खान साहब ने, हमेशा से वो यही बात करते रहे और उस वक्त करते रहे जब ये इंतहाई अनपॉपुलर बात थी। मेरे लिए ये इसलिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैंने उस टाइम में बहुत सारा अरसा मगरब में गुजारा और मुझे पता है कि वो क्या क्या एक्सपेक्टेशन करते थे और किस कदर गलत नॉलेज पाकिस्तान की वहाँ पर पहुँचती थी, मगर कोई लॉजिकल बात करने वाला नहीं था। और उस वक्त जब खान साहब ये बात करते थे तो सब समझते थे कि ये बात गलत है। यही बात मैंने देखा कि हमारी तरफ से की गई, फॉरेन मिनिस्टर्स ने की, लोगों ने की, लेकिन बावर नहीं होती थी दुनिया को। अब हमने आकर एक एक्शन के साथ जब ये बात की है तो आज इस बात में बहुत ज़्यादा वज़न है। एटलीस्ट the people are listening to you, the US is listening to you, the world is listening to you। और जब ये बात होती है कि लोग आपको सुन रहे हैं, आपका मौक़िफ़ फिर वो समझें कि भी, क्योंकि
ایک اور بات آپ کو بتاتی چلوں ویسٹرن ورلڈ کے بارے میں, یہ غلط تاثر ہے کلیش آف سویلائزیشنز, اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن آپ کو بات سیدھی کرنی چاہیے. تو بات سمجھ جاتا ہے, آپ کی بات سے ہو سکتا ہے وہ ایگری نہ کرے, لیکن وہ آپ کو رسپیکٹ ضرور دے گا کہ اس نے سیدھی بات کی ہے, مجھ سے سچی بات کی ہے. سو یہ چیز اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دیکھیں, وٹنس کریں, وی شوڈ آلویز اپریشیٹ اٹ. ڈو گیو می یور فیڈ بیک. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. انٹل مائی نیکسٹ ویڈیو, ٹیک کیئر آف یور سیلف.